हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज एक वीडियो देखेंगे जिसमें एक फेमस हिस्टोरियन है करंट मॉडर्न टाइम्स के, जिन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं। उनका नाम है विक्रम संपत। और उनका एक पॉडकास्ट पे इंटरव्यू है जिसमें वो नॉर्थ ईस्ट के वॉरियर्स की बात कर रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं दिया जाता हमारे यहाँ की जो हिस्ट्री बुक्स हैं उनमें। हालांकि बहुत सारे और लोगों को, मेन लैंडर्स को भी जिनको मिलना चाहिए, उनको भी इनफ क्रेडिट नहीं मिलता, बट नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ शायद थोड़ा ज़्यादा ही है ये चीज़। और वो बता रहे हैं कि कौन है वो लोग, तो वो देखते हैं क्लिप। और अगर मेरी कुछ इनपुट होगी तो मैं भी शेयर करूँगा उस पर। Let's go into the northeast part when we talk about the Ahom kingdoms, the Meiteis. Let's talk about that. Northeast, which is a black hole, I think, when it comes to Indian historiography. Who ऐसे even ही लगता है। knows much about the Ahoms? The larger Indian, mainstream history, the Ahoms who ruled for 600 years. If you ask a little child, can you name two Ahom Rajas or one Ahom Raja? I'm sure nobody would even know. The Ahoms ruled for 600 years in Assam, and they kept it largely an impregnable fortress, barring a couple of attacks, Mir Jumla and others. Assam was not conquered, and the large part of western Assam, which Mir Jumla conquered Occupied. during Aurangzeb's time, was within a matter of 10 years, 12 years. The Ahoms completely reorganized themselves, built themselves from scratch under their ruler Chakradhwaj Singha and his commander Lachit Borphukon. And we have the Battle of Saraighat, where the Mughals were beaten black and blue and sent back. Raja Ram Singh of Jaipur, who's sent with a huge army by Aurangzeb to conquer Kamrup back, he's defeated completely. Why is mainstream India not listening to these stories? Yeah. Similarly, the Meitei rulers, I talk about Pamheba in the book. Nagaland and Manipur. Both. Yeah. So correct. that entire region, I mean, Pamheba was the one who introduced Hinduism in Manipur. And then his successor, whom I cover in the book, Bhagyachandra Jai Singh, brings this whole Vaishnav Sampradaya, the Manipuri Ras Leela that you see today, the Nata Sankirtana, all of that happens under him, the Govind. इवन मणिपुर का जो नेम है, मणि कहते हैं हिंदी में जूल को, या फिर किसी कीमती पत्थर को, या हिंदी संस्कृत, तो मणिपुर। Ji, Sri Govind Ji in Manipur was established by him. He offers his own daughter as Radha because the idol of Radha could not be sculpted on time for the installation, and they all wonder what to do, and he offers his own little young daughter as Radha and creates this dance form. So while on the one hand he is also keeping the Burmese armies at check, who are constantly invading Manipur, there's a toss of the throne between the two Meiteis and the Burmese, but at the same time he's also doing a spiritual and cultural renaissance. The name Manipur also is very Sanskritic name, is given to the kingdom by him. Yeah. And today, if Vaishnav, Satras and so on in Assam, Manipur, that entire region, it's all because of these roots of the Ahoms and the Meiteis and these people. So the civilizational heroes that I spoke of may not be in the traditional sense of going to a battlefield and fighting, but keeping your faith alive and probably creating a renaissance there in the wake of adversities and calamities. I think that's where their contribution becomes so important. But again, we don't know much about them, we don't read about them. ओके, काफ़ी छोटी क्लिप थी, बट एनीवे अगर ये लंबी भी होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस पर कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाता, क्योंकि हिस्ट्री में तो है मुझे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी बहुत, बट जैसा कि मैंने कहा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हिस्ट्री एटलीस्ट मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम से तो आपको कुछ भी जानने को नहीं मिलेगी। मैं पर्सनली लचित बोरफुकन जो हैं, जो सेनापति थे, एक बहुत फेमस नॉर्थ ईस्ट का जो अहोम किंगडम है उसके, उनके बारे में पर्सनली मेरे एंड पे मुझे सिर्फ उतना ही पता है। मेजॉरिटी जो इन्होंने मेती किंगडम की बात की, उनके बारे में मुझे कोई ज़्यादा नहीं पता। ऑफ कोर्स फूड फॉर थॉट है, पढ़ूंगा मैं भी जाके, शायद कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन लचित बोरफुकन कि मैंने एक्चुअली पूरी, मतलब जितना भी अवेलेबल इंटरनेट पे था उतना कोशिश की पढ़ने की, और बेसिकली ये समझ में आया उसको पढ़ के कि मुगल्स ने सिर्फ एक अटैक नहीं किया था, मुगल्स ने मल्टीपल अटैक्स किए थे असम के ऊपर, अहोम किंगडम के ऊपर, और उन्होंने कंटिन्यूसली
बैक एंड फोर्थ चलता रहा, कभी ये थोड़ा सा ले लेते थे तो वो इनको हरा देते थे। और एक्चुअली बहुत बड़े बड़े लेवल की बैटल्स उन्होंने इनको हराई है। मतलब एक तो होता है ना कि दोनों ने लड़ा और इक्वली एंड पे एक थोड़ा लाइक 20 पड़ गया, एक 21 पड़ गया, नहीं इस तरीके से नहीं। उन्होंने उनको बड़ी टैक्टफुली, बड़ी ही लाइक युक्तियों के साथ हराया, क्योंकि वो लोग रिवर वाले एरिया में और जंगल वाले एरिया में वॉर कैसे करते हैं, जो कि असम का या नॉर्थ ईस्ट का जनरल टोपोग्राफी है, उस में वो लोग लाइक रिवर का इस्तेमाल कैसे करना है, रिवर की जो नेवी है उसका इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, इन सारी टैक्टिक्स का उन्होंने इतना अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और बहुत ही, जिसे कहते हैं, बुरी तरह से हराया था उन्होंने मुगलों को एक से ज़्यादा बार। तो जहाँ पूरे इंडिया में उनका कब्ज़ा हो रहा है, वहाँ अगर एक छोटा सा किंगडम इतनी ज़बरदस्त उनको हरा रहा है, तो ये अपने आप में काफ़ी इंस्पिरेशन लगता है सुनने में। तो इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं है नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री के बारे में। ये मेरे 2 सेंट्स हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक मैं आज, क्योंकि मेरा ध्यान उस पर 2-3 दिन से आया, तो आज उस पर मैं बात करना चाहता था। अम, एक इशू चल रहा है लद्दाख में, जिनके ऊपर मूवी बनी थी, 3 इडियट्स। उन्होंने उनका यूट्यूब चैनल भी आपको मिल जाएगा। उन्होंने एक पहले वीडियो डाली जिसमें उन्होंने बताया कि मैं एक काफ़ी हाई माउंटेन पास से, कि मैं यहाँ पे लद्दाख का जो यूटी का जो वो है उसमें उनको कुछ कंसेशंस की वो मांग कर रहे हैं वहाँ। कंसेशंस इस तरीके से जहाँ जिससे कि वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है और जो नेचुरल वहाँ का इकोसिस्टम है उसको सेव करने में हेल्प मिल सके, उससे रिलेटेड कुछ रिजर्वेशंस की मांग है वहाँ पे लद्दाख में, उससे रिलेटेड कुछ इशू चल रहा था। तो मैंने उनकी वो वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मेंशन करूँगा। उसके बाद उनकी एक और वीडियो आई कि मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। वो काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है देश में, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी थिंग, बैकग्राउंड, रिलीजन, पॉलिटिक्स, वट एवर, पॉलिटिकल फिगर है भी नहीं वो। um, तो सोनम वांगचुक नाम है उनका, मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा था। उनके ऊपर ही मूवी बनी है एक्चुअली। जो फुंगसुक वांगडू जो करेक्टर है 3 इडियट्स में, वो सम हाउ लूजली बेस्ड है उनके ऊपर। तो उनका पहले वीडियो है कि मैं जोजिला पास या किसी बहुत हाई माउंटेन पास से उनका वीडियो आया था कि मैं यहाँ पे अनशन करूँगा उस डिमांड के लिए, जो कि हमें प्रॉमिस किया गया था इवन बीजेपी के जो मैनिफेस्टो है उसमें। और फिर कपल ऑफ डेज के बाद उनकी दोबारा वीडियो आती है कि कैसे उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तो मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। शायद मैं कल या परसों तक उस पर कुछ ना कुछ बात करूँगा। होपफुली कुछ इन्फॉर्मेशन अगर ऑनलाइन मिले उस पर, तो उस पर रिएक्शन के थ्रू बात करना इजी होगा। या फिर उनकी ही किसी वीडियो को देखा जा सकता है। जो सो फार उन 2 वीडियोस को देख के पता चला है वो ये है कि पहले उन्होंने कहा कि मैं अनशन करूँगा, दूसरे बार जब वो अनशन करना चाहते थे तो उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। और थोड़ा सा उनका जो निराशा है प्रशासन से या सरकार से, वो पहली वीडियो में झलक रही है और दूसरी वीडियो में थोड़ा ज़्यादा खुल के सामने आ रही है। और उन्होंने ऐसी भी बातें कही कि अगर हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे तो शायद कहीं लद्दाख में लाइक मिलिटेंसी की प्रॉब्लम ना आ जाए, जो कि बहुत ही लद्दाख से इस तरीके की न्यूज़ कोई नहीं सोचता। तो उस मुझे लग रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको लोग ध्यान नहीं दे रहे, पता नहीं कोई उसके बारे में न्यूज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। तो देखते हैं, मैं कल उस पर कुछ ना कुछ बात करूँगा। देखने के लिए थैंक यू।